Good morning, students. Welcome to today's class. In today's class, we are going to start last topic of this lesson, and that is folding and rifting. That is folding and rifting. So, students, we have almost completed this lesson and already discussed on the other topic of this lesson. So, this is the last topic of this lesson, and that is folding and rifting. Students, you know that there are two types of change in the length forms. First is slow or long change. Slow or long change. Listen carefully. Slow or long change. And second is sudden movement. Yeah, sudden changes. Slow or long movement and sudden changes. This is the second part. First part is, देखो, length forms, changing length forms. This is the topic. There are two types of changing length forms. First is slow or long movement, and second sudden movement. Yeah, slow or long change or sudden change. So we have already discussed on sudden change. Remember, sudden change, there were two types of sudden changes we have seen. That was, first was volcano and second was earthquake. Okay, now students, we have already discussed on the second topic of this main topic. Main heading is changing length forms. There are two types of length forms. There are two types of changes in the length forms. First is slow or long change and second is sudden change. And the second part, it means sudden change. And already discussed on the volcano and earthquake. So the first part was remaining, and today's class we are going to start first part, and that is slow or long change movement. धीरे धीरे या दीर्घकालिक होने वाले परिवर्तन, इस बात पर हम चर्चा करने वाले इस क्लास में। और हमने इसका दूसरा पार्ट जो था सडन चेंज यानी अचानक से होने वाले परिवर्तन, तत्कालिक परिवर्तन, इसके अंतर्गत हमने ज्वालामुखी और भूकंप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, स्लो और लॉन्ग मूवमेंट। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लो और लॉन्ग चेंजेस और मूवमेंट. फर्स्ट इज फोल्डिंग and second is rifting. Okay, now here is a only small definition of both folding and rifting, and you can easily understand the matter. So do not take any types of tension, and you can easily understand all the topics, folding and rifting. Now we take first part, that is folding. अब ये folding क्या होता है बेटा? This is the slow or long movement of landforms. What? Folding. Folding पृथ्वी की सतह में भूस्थल आकृतियां जो है उसमें होने वाले स्लो यानी धीरे धीरे उसमें होने वाली धीमी और लॉन्ग या दीर्घकालिक प्रक्रिया है फोल्डिंग। इसका अर्थ होता है वलय। क्या होता है इसका अर्थ है वलय। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फोल्डिंग का अर्थ होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोल्डिंग, एंड देन वी विल सी द रिफ्टिंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली. फोल्डिंग, दिस इज द मोस्ट easiest answer of this questions. What do you mean by folding? There is a question in your textbook कि what is the difference between folding and rifting? What is the difference between folding and rifting? तो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. व्हाट इज फोल्डिंग? स्टूडेंट्स, फोल्डिंग यानी होता है वलय. फोल्डिंग यानी होता है वलय. अब वलय यानी क्या होता है? वलय मीन्स देखो ये मूवमेंट, वेव्स. यू हैव ऑलरेडी सीन वेव्स. यस, जैसे तरंगे उठती है समुद्र में, कैसे तरंगे उठती है, तो कैसे इस टाइप से, है ना. तो ये होता है वेव्स. इसको बोलते हैं वलय. इसको बोलते हैं वलय. वलय का अर्थ ऐसे घेरा भी होता है बोलना, पर यहां पर हमको वलय यानी इस टाइप से, जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, ऐसे ऐसी, तो इस टाइप से इसको कहते हैं वलय. फोल्डिंग का अर्थ होता है वलय. अब नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ फोल्डिंग. टू नो द डेफिनेशन ऑफ फोल्डिंग वी मस्ट कीप 3 पॉइंट्स इन आवर माइंड, एंड दोज आर horizontal, bend
and rocks. Only on these three short points you can easily write the definition of folding. What are the points? Horizontal, bends and rocks. Horizontal, bends and rocks. Now students listen carefully. Horizontal यानी होता है आड़ा, क्षैतिज बोलते हैं इसको एक्चुअल, आड़ा है ना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये अपने वर्ड बहुत बार सुने होंगे. तो यू हैव हर्ड मेनी टाइम्स दिस टू वर्ड्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, है ना. तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज या आड़ा. आड़ा यानी जैसे हमारी लैंड है उस पे आड़ा. अब आपको समझ में आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल. सेकंड है बेंड. बेंड है चेंजेस इन शेप. बेंड देखो कोई तार है, अगर कोई तार है आप उसको, कोई ऐसा मोटा तार है उसको आप थोड़ा प्रेशर लगा के ऐसा मोड़ देते तो वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है ना. उसकी जो आकृति है, जो उसका स्ट्रक्चर है, इट चेंज ड्यू टू प्रेशर. आप उसको कोई तार लो, उसको आप क्या करोगे, ऐसा थोड़ा सा ऐसा अपना जितना कम प्रेशर लगा के उसको क्या करोगे, आप उसको मोड़ दोगे तो वो हो जाता है, उसमें बेंड आ जाता है ना. तो उसमें हो जाता है बेंड आ जाता है. तो ये होता है बेंड्स. और रॉक्स, यू नो रॉक्स, चट्टान, है ना. ऑलरेडी यू हैव लर्न इन द प्रीवियस टॉपिक्स rocks and its types, है ना. तो now students we know the definition of folding. तो keep three words only in your minds. On the basis of these three words you can easily write the answer of folding. folding यानी वलय, horizontal यानी आड़ा, bend यानी उसमें bend आना यानी मुड़ जाना, और rocks यानी चट्टान. Now definition of folding. The horizontal land movement, the horizontal land movement in the earth surface causes bend or waves in the rocks due to external force is known as folding. माने धरातल पर, पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के क्षैतिज भाग में जो भूस्थल आकृतियों यानी रॉक्स में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिससे उस रॉक्स में क्या आ जाते हैं, बेंड आ जाता है या उसमें वेव्स आ जाते हैं. यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है. जैसे माउंटेन है, माउंटेन अगर प्रेशर से दब जाता है तो वो थोड़ा दब के कट जाता है, दब के फिर हो सकता है छोटा प्लेट्यू बन जाए, या फिर जो प्लेट्यूज है वो क्या हो जाए, वो प्लेन में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. जो बाहरी फोर्स है नेचर का, उसके कारण, है ना. रेन है, एयर है, इससे कुछ फोर्स लगते रहता है तो उससे ये चेंज होता है. तो ये होता है बेटा फोल्डिंग, यानी उसमें ऐसे वलय पड़ जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड the folding. Now listen carefully again, this is the definition of folding. Now after this you will easily understand the definition of folding. The folding means वलय. Now listen carefully the definition of folding. The horizontal landform, the horizontal landforms of the earth surface change. The horizontal landform, the horizontal land movement in the earth surface, the horizontal land movement in the earth surface due to external force in causes bend or waves in the rocks, that is known as folding. That is known as folding. ये है बेटा folding की एक definition. What is the definition of folding? The horizontal land movement in the earth surface causes, या ऐसा भी लिख सकते हैं, the horizontal land movement due to external force in the earth surface causes bend यानी वलय, बेंड यानी उसकी आकृति में परिवर्तन, बेंड और वेव्स इन रॉक्स, that is known as folding. And due to this process some part of rocks, a few parts of rocks can goes up or few parts of rocks goes down.
इसके कारण क्या होता है, जो रॉक्स रहती है उसकी चट्टान का कुछ भाग ऊंचा रह जाता है और कुछ भाग नीचा बन जाता है, कुछ भाग नीचे जमीन में धंस जाता है थोड़ा थोड़ा। तो सम फ्यू पार्ट्स गेट्स अप एंड फ्यू पार्ट्स गेट्स डाउन। तो दिस चेंजेस आर कॉल्ड फोल्डिंग। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फोल्डिंग। आप पिक्चर भी देख सकते हो बेटा फोल्डिंग का, है ना। मैं आपको इसमें अभी फोल्डिंग का जो पिक्चर है वो आपने इसको सेट करूंगा, तब आपको फोल्डिंग, वैसे आपके बुक्स में भी अगर इफ यू हैव बुक्स देन यू कैन सी देयर द पिक्चर ऑफ फोटो ऑफ फोल्डिंग, स्नैप ऑफ फोल्डिंग, है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा फोल्डिंग फर्स्ट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट्स, अब फिर से आगे एक बार आप फोल्डिंग की डेफिनेशन सुन लीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोल्डिंग। द horizontal land movement, the horizontal land movement in the earth surface due to external force causes bend or waves in rocks is known as folding। यानी देखो horizontal वर्ड याद रखना है, बेंड याद रखना है, रॉक्स याद रखना है। तो इसके बेस पर आप क्या कर सकते, लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, द होरिजेंटल यानी आड़ा, द होरिजेंटल लैंड मूवमेंट, लैंड मूवमेंट है ना, यानी जो धरातल की आकृतियों में होने वाले परिवर्तन, है ना, प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, कुछ भी हो सकता है। द होरिजेंटल लैंड मूवमेंट्स इन द अर्थ सरफेस causes or due to external force causes bend or waves in rocks, that is known as folding। यानी पृथ्वी हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट, देखो इसकी हिंदी में डेफिनेशन कैसे होगी कि पृथ्वी तल पर होने वाले कुछ क्षैतिज परिवर्तन, पृथ्वी तल पर बाहरी फोर्स के द्वारा होने वाले ऐसे क्षैतिज परिवर्तन जिसके कारण रॉक्स में या तो वलय बन जाते हैं, बेंड बन जाते हैं, या उसमें वेव्स यानी ऐसी वेव्स यानी तरंगे की तमाम आकृतियां बन जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं फोल्डिंग। यानी जो पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल पे जो स्थल आकृतियां है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है और प्लेन है, इसमें आउटर प्रेशर के कारण ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, उसमें कुछ बेंड आ जाता है, तो बेंड आ जाता है, उसमें वेव्स बन जाते हैं और उससे क्या होता है, कुछ भाग ऊपर चले जाता है उस रॉक्स का और कुछ भाग नीचे चले जाता है। तो ऐसा इस टाइप से वो रॉक्स बन जाती है। तो पहले ऐसा प्लेन था, पहले कैसा था, पहले देखो, पहले इस टाइप से थी, आपकी जो सरफेस थी वो इस टाइप से थी, है ना, इस टाइप से थी, इस टाइप से ऐसी थी। और सेकंड पार्ट में क्या हो जाता है, इस टाइप से, फिर वो ऐसा, ये पहले प्लेन है इस टाइप से, पर उस पर जब आउटर प्रेशर पड़ता है हॉरिजॉन्टल तो वो बेंड हो जाता है, देखो ये बेंड है ना। तो उससे क्या होता है, सम पार्ट goes up and some part, a few parts goes up and few parts goes down। तो ये हो गया फोल्डिंग और इसका पहला पार्ट, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लैंड फोल्डिंग की डेफिनेशन। फोल्डिंग यानी होता है वलय, और इसमें हमने ये देखा कि द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ सरफेस causes bend or waves in rocks is known as folding। ये क्या है, स्लो और लॉन्ग टाइम चेंजेस, स्लो और लॉन्ग मूवमेंट है, स्लो और लॉन्ग चेंजेस है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, फोल्डिंग है पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के क्षैतिज भाग में, धरातल में होने वाले ऐसे बाहरी तत्वों के, बाहरी फोर्स के द्वारा होने वाले ऐसे परिवर्तन जिससे धरातल पर स्थित चट्टानों में कुछ बेंड या कुछ वेव्स, वलय आ जाते हैं। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं फोल्डिंग। यहां देखो ये सिंपल है, और उसके बाद जब प्रेशर पड़ा तो वो अप एंड डाउन, और फ्यू पार्ट्स गोस अप एंड फ्यू पार्ट्स गो अप एंड फ्यू पार्ट्स गोस डाउन। ये ऐसा है बेटा इसका, है ना। तो ये हो गया बेटा फोल्डिंग। तो आपको समझ में आ जाएगा, 2-3 बार ये डेफिनेशन जब पढ़ोगे और ये 3 वर्ड्स याद रखोगे, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज या आड़ा, बेंड यानी उसमें होने वाले परिवर्तन, बेंड हो जाता है ना, उसमें इस तरह में होने वाले चेंजेस, एंड रॉक्स यानी चट्टान। तो इसके बेस पर आप फोल्डिंग को लिख सकते हो। एक बार और सुन लो उसकी डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल land movement in the earth surface due to external force causes
bend or waves in the rocks, and that is known as holding. Okay, now students, we shall meet in second video with the topic rifting.